you all. I welcome you all to today's digital marketing masterclass. So first of all, I'll introduce to you all Stu Technology, and then we will start with our today's masterclass. So Stu Technology Private Limited has a successful track record in the field of academia, research, training, recruitment, and job assistance since its inception in 2018. We also offer training and internship for all levels of the professional world. It starts from plus two level to a seasoned professional. We in Struwelli Technology emphasize academic and research development, as no civilization can survive without education and can't progress without research. We work with each applicant to prepare them for employment ready. Struwelli Technology bridges the gap between employer and employee via industry or product specific selection and pre-employment training. Just for a quick look, I am sharing my screen and showing you all the unique services we Struwelli Technology Private Limited family holds. So I'll be sharing my screen now and showing you all the services of Struwelli Technology. So I hope my screen is visible to you all. So for learning and teaching platform, we have Prayug. For internship training program, we have StuIntern. For professional AI resume builder, we have Resume Ocean. For job portal, we have Navrojan. For education and college and university searchers, we have Vidyapun. For psychometric test, we have Sudakshta. And for research, we have Anushram. So these are all the services which we offer at Struwelli Technology. And now I'll be introducing your trainer for today, that is Nisreen ma'am. So she has over 8+ of experience in digital marketing training, and she is taking specialized classes for the same. And she is also an IELTS trainer. So I'll be handling over to her now. Over to you, Nisreen ma'am. Thank you so much, Arzu. And students, please, if it's possible, please switch on your cameras and try to interact with your trainer as much as possible and ask her as much as questions you can. So please make this session very interactive. Over to you, ma'am. Yeah. So good evening, everyone. Myself, Nisreen here. I am from Pune. Okay, I am a digital marketing trainer with more than 8 years of experience in the same field. I have worked with many online portals, and currently also I'm working with many online portals. So, as everyone has joined for the master class, before we start up with the session, I would like to ask how many of you all are aware about digital marketing, or how many of I mean the topic is completely new for everyone. Is it fine we go with only English or Hindi English दोनों में किसी को कुछ मतलब लैंग्वेज का अगर इशू है तो they can speak up. Both. Okay, Pravat. So, see, I just don't want this session to be, just I'm speaking and you're just listening. But I want this session to be an interactive one. Okay. जो भी है doubts, आपको कोई questions है, you are free to ask anytime. You can just raise your hands and the doubts will be sorted. ठीक है. But I don't want you all to just quietly listen. हो सकता है कि आपके पास भी कुछ ऐसा नॉलेज हो, या फिर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सम टिप्स वेयर इट विल हेल्प टू एवरीवन. सो वी आर हियर, एवरीवन इज हियर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर अवेयर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, कि कैसे काम करता है, या फिर इज इट कंप्लीटली न्यू फॉर एवरीवन? आई डोंट थिंक सो इट मस्ट बी न्यू, बट मे बी आई मीन लाइक आई वुड लाइक टू नो सो दैट जैसे विल गो विद द स्टेप. या ओके महेंद्र, यू आर अवेयर अबाउट लिटिल बिट. सो लिटिल बिट में क्या मतलब, जैसे कि सो डिजिटल मार्केटिंग में जैसे कि आपको क्या पता है कि एड्स चलते हैं या फिर कैसे चलते हैं? आर यू अवेयर और यू हैव जस्ट listened about it? Okay, Manas is aware. You are aware about ads. Have you ever done practicals? कभी किसी ने डिजिटल मार्केटिंग को लेके कुछ प्रैक्टिकल
किया है या फिर नो, नोबडी इज अवेयर? ओके, प्रवत इज डन। ओके, ओके, मानस इज डन ऑन फेसबुक। तो प्रवत, आपने किस पे एड्स चलाए हैं? और मैम मैंने बोथ में चलाया, गूगल और फेसबुक और में चलाया। आपने दोनों किया है यूज? ओके, हाँ जी मैम। शमिस्ता इज डन इंटर्नशिप। ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैम मेरे रूम से। हेलो। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Doing हेलो। हाँ जी मैम। I'm doing that internship. Acha, It is okay, not. you have done internship. So how was your experience? Did you learn? Because internship is the best thing where you get hands-on practice on live projects after learning from the course. Yes, ma'am. Okay, fine. So I'll just share my screen. Just give me 1 second. Okay. So as we are here to discuss about the challenges and opportunities in digital marketing. ठीक है। सो अभी जैसे कि सभी को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कितना इट्स सो मच लाइक द फ्यूचर इज कंप्लीटेड डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो हाउ व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट फॉर डिजिटल मार्केटर्स? क्या लगता है आपको, कैसे अपॉर्चुनिटीज है और हम उस पे कैसे वर्क कर सकते हैं? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, opportunities you can create by the content. Main thing is, see, compared to traditional marketing, okay, जैसे कि you find hoardings, banners, newspaper में ads है, रेडियो मिर्ची पे ads है, तो these are all traditional marketing, okay, but वहां पे like see now it's so much digitally, like बहुत कम लोग, हर किसी के घर पे न्यूज़पेपर तो आता होगा, बट compared to previous, okay, the generation, like hardly one person in the house must be reading the newspaper, मतलब जैसे अपने सीनियर सिटीजन्स है वो लोग पढ़ते होंगे, बट वी आर वेरी लेस फोकसिंग ऑन दीज मीडियम, वी आर फोकसिंग ऑन कंप्लीटली डिजिटल। अगर आपको न्यूज चाहिए तो आप आज तक ओपन करोगे या फिर टाइम्स इंडिया का आपका आपके पास ऐप है, पॉपअप आ जाएगा एंड दैट्स इट। ठीक है, सो द सेम थिंग इज, अभी डिजिटल तो है, अब हम ये सोचते हैं कि लाइक डिजिटल से हम काफी रीच पहुंच सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बट अगेन कैसे करोगे आप? तो आपका मेन जो है, आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं होगा, जैसे कि आपने कोई एड रन किया है, ओके, भले आप 10,000 क्यों ना स्पेंड करो, बट अगर कंटेंट में आपकी यूएसपी नहीं होगा, आपका ब्रांड नेम नहीं होगा, लोगो नहीं होगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जनरेट लीड्स। बिकॉज आप, आई होप एवरीवन इज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। यस मैम। यस, सो वेन एवर यू कम अक्रॉस, सी, कभी भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे तो पूरे दिन में अगर आपको 2 से 3 भी अगर एड दिखती है, तो इट इज नॉट नेसेसरी यू विल क्लिक ऑन ईच एवरी एड, राइट? तो जो भी एड, भले छोटा सा बैनर क्यों ना हो, बट वो कंटेंट जो है जिसको आप अट्रैक्ट कर रहा है, उसी पे आप क्लिक करोगे। सो अगेन, कंटेंट प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। कंटेंट इज द किंग इन डिजिटल मार्केटिंग। बिना कंटेंट के आपका डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी आप कर लो, कितना भी अमाउंट स्पेंड कर लो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो हाई क्वालिटी कंटेंट अट्रैक्ट्स एंड एंगेजेस टारगेट ऑडियंस व्हाइल ड्राइविंग एसईओ। सो अगेन, कंटेंट में आपके जो कीवर्ड्स है, आप फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हो, तो योर कीवर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे गूगल पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना भी है, या फिर फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो फॉर अ डिनर, ओके, तो आप गूगल पे क्या करोगे, भले आपको पता है कि ये एरिया में ये रेस्टोरेंट है, बट आप गूगल पे सर्च करोगे, ओके, लाइक रेस्टोरेंट नियर मी, तो रेस्टोरेंट इज अ कीवर्ड। सो अगर आपके कंटेंट में एसईओ प्रॉपर से किया हुआ होगा, तभी आपका रेस्टोरेंट फर्स्ट पेज पे दिखेगा। अगर आपने आपके आप वेबसाइट कितनी भी अच्छी बना लो, आप 10 पेज की बना लो, बट वहां पे अगर आपका एसईओ ड्रिवन नहीं होगा, कीवर्ड्स प्रॉपरली अपडेट नहीं होंगे, तो आप, पॉसिबल ही नहीं है कि आप फर्स्ट पेज पे आओ। एंड आई डोंट थिंक सो इवन व्हेन वी सर्च ऑन गूगल, ओके, हम फर्स्ट 3 पे ही फोकस करेंगे, फर्स्ट 3 भी नहीं, फर्स्ट जो आता है हम उसी पे क्लिक करेंगे एंड वी गो and take an action. We don't go even on the second page. Has anyone who's gone to the second page and taken action? I don't think so. कोई जाता है सेकंड पेज पे? हेलो? No, ma'am. Rarely they are going to the second page, ma'am. Some people are demanding the first plus font page. And
to the front page, but within the technical issue and other places. And Subrajit, your the voice is not clear. Can you speak little loud? मतलब मैम रेयरली कोई सेकंड पेज पे जाएगा, हाँ, एम आई क्लियर मैम? second page is very difficult. I think in the first listing ही पहले 2-3 में ही we check, अगर वो भी first पे हम कॉल करेंगे, अगर नंबर लगता है तो well and good, then we switch to the second. Nobody goes to the second page. यस मैम, मतलब Okay. मेनली आपका कीवर्ड एंड ऑन पेज, आई मीन ऑन पेज इश्यू एंड सेकेंडली टेक्निकल इश्यू पे आपका ज्यादा फोकस है, कितना शटर स्पीड है, कितना जल्दी खुलता है, या फिर कितना रिस्पॉन्स, Correct. इवन रिस्पॉन्स आ जाता है। Yes. So वही है कि अपना content is very much important. So here, you create content that answer users. Again, see, these are the tools, answer the public and Google Trends. Okay, जहाँ पे आपको हर questions के answers आपको मिलेंगे. Wait, I'll just share. एक second. Give me 1 second. Anyone who has used Answer the Public? नील पटेल का टूल है. आंसर द पब्लिक समरस। Yes. नील पटेल का. See, here you will get the questions. मतलब कभी आपको ऐसा लगा कि कंटेंट कहाँ से जनरेट करे, तो these are the tools where you can just check and you can use it. Google Trends भी है. Okay. See, any topic. For example, if you want to check about digital marketing. See. Say search volume कितना है? 3. You can see the questions also here. 8 seconds, it's taking time. How many questions? 114 questions are there. See, these are all questions related to your digital marketing. See, our digital marketing, jobs in demand. So these are all the questions which help you, to see मतलब कौन से आपके content में आप ये question के through आप अपना content generate कर सकते हो. So any topic you want, if you're looking for graphic designing or anything, you can use it. See, where to start digital marketing, where to learn digital marketing, from where digital marketing, learning digital marketing. Any, like, the keyword is there and there are n number of questions. ठीक है. वैसे ही Google Trend is also a tool. Okay, Google Trends can reveal trending topics. So which are the trending, you will get to see. So again, use long tail keywords. I mean, keywords is like जैसे कि digital marketing एक keyword हो गया. It's a keyword. तो वैसे ही long tail मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो कि digital marketing course for beginners, it's a long tail keyword. Or digital marketing is helpful in future, this is again a long tail keyword. तो जो भी है एक कीवर्ड पे नहीं फोकस करना. You can use multiple. You can go for the exact match. You can go for the phrase match. Okay, ठीक है. So जिसके वजह से आपके रैंकिंग के चांसेस ज्यादा है फर्स्ट पेज पे. So focus on pillar content, in-depth guides or tutorials, and support with shorter related pieces to form content clusters, enhancing SEO and user engagement. See, हमारा फोकस क्या है कि जितना हो सके engagement हो.
That is what our focus is. So all depends upon your content. Then comes social media marketing. Again, how you can create opportunities here. Social media platforms जैसे कि Facebook, Insta, TikTok है, LinkedIn है, anything. You get a mixed audience वहां पे आपको मिलेगा. अभी आपको यहाँ पे भी जो भी आप everyday whatever you post, I don't know, I mean like how much active you all are. Okay, even I think you all must be having your own pages or how frequent you all post. Okay, तो ऐसे नहीं है कि आप you need to plan the entire month's content calendar for social media. ओके अगर अगर अवेयरनेस नहीं होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में तो पीपल विल नॉट इंटरैक्ट टू योर प्रोडक्ट एट ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट. ठीक है, फिर डिजायर क्रिएट करो. ओके, ट्राई टू ऐड इन योर कंटेंट अबाउट किसी का टेस्टिमोनियल आपने शेयर किया है या फिर रिव्यूज आपने शेयर किया है. हाउ डज द प्रोडक्ट वर्क. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो अल्कलाइन वाटर इन द मार्केट. ओके, जैसे कि आरओ अभी नया आया है. ओके, पीपल आर टॉकिंग अबाउट अल्कलाइन वाटर, तो मेनी पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज अल्कलाइन वाटर. तो उसके लिए आपको अवेयरनेस, अभी अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट के डिटेल्स अगर आप कंटेंट बना के पुटअप करोगे सोशल मीडिया पे, पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड. ओके, दे वांट टू सी द डेमो, हाउ डज इट वर्क, मतलब प्रोज एंड कॉन्स आपको बताना पड़ेगा. तो वो और एंटायर मंथ का जब आप कंटेंट कैलेंडर प्लान करोगे, सो पीपल एवरी डे लाइक यू नो इन सपोज इफ यू हैव प्लान लाइक 3 पोस्ट इन अ वीक, तो एवरी ऑल्टरनेट डे आपको डिफरेंट पोस्ट करना पड़ेगा. भले कंटेंट आपका सेम ही हो बट इन अ डिफरेंट वे. ट्राई टू पुट अप अ वीडियो और समटाइम ट्राई टू पुट अप यू नो रेज अ पोल, या फिर कभी आपने किसी का टेस्टिमोनियल शेयर किया. ओके, तो आपको पता चलेगा कि कौन से कंटेंट पे मुझे ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है. तो अगेन आफ्टर पोस्टिंग ऑल्सो यू नीड टू गो एंड चेक इन योर फेसबुक एनालिटिक्स, इंस्टाग्राम इनसाइट्स कि कितने लाइक्स और कितने आपको ये आ रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी लॉग इन टू आवर फेसबुक. ओके, सो एवरी टाइम यू नीड टू मॉनिटर योर चैनल. ओके, अगर यूट्यूब चैनल है तो आपका यूट्यूब चैनल आपको मॉनिटर करना पड़ेगा. आपका जो भी है पेज यू नीड टू मॉनिटर. फॉर एग्जाम्पल this is your Facebook account. Okay, if we go on your pages, okay, if this is your page, okay, अभी यहाँ पे इसका आप insights आप देखोगे. Okay, you need to see how many posts reach. Suppose you have posted, how many people have seen your post, how much engagement you have got on the post, and how many page likes you have got. So you need to monitor everything. ऐसे नहीं कि आप सिर्फ पोस्ट पुट अप कर रहे हो और you find like हाँ नहीं, मतलब you are doing your work. Just give me 1 second. Hello. Okay, I'm very sorry. ओके, तो ऐसे आपको पेज व्यू भी चेक करना है. और अगर आपने एड चलाया है, ओके, सपोज यू हैव रन एड, यू नीड टू चेक योर एड सेंटर. सपोज यू हैव प्रमोटेड एनी आपके जो भी एड्स आपने चलाए, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने इंप्रेशंस आए. गो टू एड्स मैनेजर फ्रॉम योर फेसबुक पेज. ओके, how many impressions you have got, how many clicks you have got, how many posts, I mean like कितने लोगों ने आपके पोस्ट को इंटरैक्ट किया, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, इफ यू हैव रन अ लीड जनरेशन कैंपेन. ठीक है, सो दिस इज वेयर यू नीड टू मॉनिटर. और ये सब कभी होगा, देखो अगर आप एड भी चलाते हो सोशल मीडिया पे, अगर आप वीडियो भी बना रहे हो, ओके, तो यू नीड टू मॉनिटर. जैसे कि यूटिलाइज नेटिव टूल्स लाइक इंस्टाग्राम इनसाइट्स. आई होप एवरीवन इज अवेयर अबाउट इंस्टाग्राम इनसाइट्स ऑल्सो. इंस्टाग्राम पे भी इनसाइट्स, अगर आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड हो, पर्सनल अकाउंट में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो एंड चेक द इनसाइट. इट इज हैपनिंग ओनली अंडर प्रोफेशनल डैशबोर्ड. ठीक है, देन लिंक्डइन एनालिटिक्स.
Again, when you log into a LinkedIn account, again you will find their analytics कि कितने लोगों ने आपके पोस्ट पे इंटरैक्ट किया वगैरह जो भी है. Okay, so this is how experiment with video format, reel stories and live sessions as they are prioritized by most algorithm and typically drive higher engagement. तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप कंटेंट पोस्ट करो और हर बार आप सोचोगे कि मैं वीडियो ही पुट अप करूंगा तो मुझे उससे ज्यादा एंगेजमेंट आएगा. See, you need to work on it. You need to find what kind of audience like you have and आपके audience को किस टाइप का content पसंद है. ओके, इफ यू अगर आप सोचोगे कि नहीं, यू डोंट हैव टाइम, हायर सम ग्राफिक डिजाइनर और हायर सम कंटेंट राइटर. सपोज यू नीड अ बिजनेस, अगर आपको बिजनेस चाहिए तो डेफिनेटली यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट. ठीक है. Then comes search engine optimization. SEO is very crucial for organic visibility in search engine, providing long-term cost-effective traffic. अगर आपको traffic चाहिए तो again, as we discussed, SEO plays a very much important role. Okay, SEO के लिए अगर आपको keywords नहीं समझ में आ रहे हैं तो go to the tools Ahref and SEMrush. Okay, I think many of you all were in the, I mean in the session. SEMrush use किया है आपने? Anyone? Yes, ma'am. Summer's screening fog, SE ranking, Okay, so and sometimes identify. sometimes Yes. also the sometimes use social blade for the YouTube video and taking their contents. ओके. 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 तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जैसे बताया उन्होंने, सुब्रजीत ने, कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी आपका बहुत जरूरी है. मतलब ऑन पेज इज नथिंग बट, जैसे कि वेट, विल जस्ट गो विद द कीवर्ड रिसर्च. ओके, विल लॉग इन टू सेमरश. बोथ आर पेड टूल्स. सेमरश आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो. ठीक है. See, this is a tool SEMrush or Ahref is completely paid. You won't get to see, I mean, like, इससे रिलेटेड भी कुछ भी आपको नहीं मिलेगा. सपोज इफ यू वांट टू चेक विथ एनी, अगर हम स्टू वैली का लेते हैं. ओके, डोमेन ओवरव्यू यहाँ पे बताता है. एंड अगेन यू कैन सी कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड ओवरव्यू आपको बताएगा. सी, यू कैन सी डोमेन ओवरव्यू ऑफ स्टू वैली का. ट्रैफिक कितना है? 324 कीवर्ड्स आर जी. ठीक है. सी, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप अगर सोचोगे कि कीवर्ड्स में अगर ज्यादा डालूंगा तो मेरा फर्स्ट पेज पे रैंक होगा. दैट इज वेरी डिफिकल्ट. एक्स्ट्रा स्टफिंग ऑफ कीवर्ड्स विल नॉट हेल्प यू टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज. रिमेंबर, सेंटेंस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे आपको कौन सा कैसे पुटअप करना है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो जैसे कि आप कुछ भी सर्च करते हो, वेट, आई जस्ट शो यू द प्रैक्टिकल. ओके, सो लाइक सी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितना है. सो यू कैन सी गूगल से ही ज्यादा आया है. ओके, सो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जैसे स्टू वैली टेक, इंटर्नशिप, उसके नाम से ही इट इज शोइंग. सो कीवर्ड्स बाय इंटेंट. ट्रैफिक नेविगेशनल कितना है? 324 है. कमर्शियल कुछ भी नहीं, इंफॉर्मेशनल नथिंग. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल गेट टू सी इन दिस टूल. मतलब एसईओ ओवरव्यू जो भी है आपका, डोमेन ओवरव्यू जिसे बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेगा. अभी कीवर्ड ओवरव्यू, इफ वी गो एंड चेक, for example, digital marketing. No, I mean, like, again, it's a pro plan. So if you go for the pro plan, you will get the entire details. So I hope you all understood. I mean, like, you can use this for the SEO purpose, SEMrush or Ahref, okay, for the keyword thing. Okay. So on page optimize, on page SEO जिसे बोलते हैं, meta titles, description and headers,
okay, and keyword density, and focus on page speed and mobile usability. Again, page speed, kabhi bhi aapka website, it should open within a second. It shouldn't take more than 1 second, because the user will not wait for it to load. वो आपके कॉम्पिटिटर को स्विच हो जाएगा. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वेबसाइट के लिए. इट शुड ओपन, एंड मोबाइल यूजिबिलिटी होना चाहिए हमेशा. यूजर विल नॉट ओपन हिज लैपटॉप एंड गो एंड चेक with the website, okay, because now everyone is on mobile, so it has to be mobile friendly both. ठीक है. Then build backlinks by guest posting, creating shareable infographics, and collaborating with relevant sites. Again, so SEO plays a very much important role. Okay, so if you want a good business, so you need to work on these things. So titles and description is nothing but जैसे कि हम Google पे अभी search करते हैं. Okay, for example, if we are searching for digital marketing agency, ठीक है, हम लोग ने ये जो पुट अप किया है, तो ये जो दिख रहा है ना, दिस इज ऑल ऑन पेज. ओके, दिस इज आपका टाइटल, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आपके जो भी लिंक्स है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑन पेज. तो जैसे मैंने अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पुट अप किया है. ओके, सो हियर दो बोलते हैं ना यूआरएल, मतलब वेबसाइट नेम इज डिफरेंट. ओके, इफ यू यूज वेबसाइट नेम योर, it won't help you to rank. So always use keywords in your headlines. कुछ लोग अपना ब्रांड नेम यूज करते हैं. सी जब तक it is popular, see if your brand name is quite popular, people will with the name. जैसे कि if we are looking for upgrade courses, so we are aware कि upgrade क्या बेचता है. ओके, तो हम अपग्रेड पुट अप करेंगे, बट उतना पॉपुलर होने के लिए इट विल टेक टाइम फॉर यू. सो इनिशियली ट्राई टू यूज कीवर्ड्स, एंड कितने लोगों को आप अवेयर कराओगे आपके ब्रांड के बारे में. सो इट्स बेटर टू यूज कीवर्ड. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑन पेज एसईओ, जहां पे देखो आपको हर टाइटल में आपको कीवर्ड दिखेगा. डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑन पेज एसईओ. Okay, then email marketing. Email marketing में like email marketing remains one of the highest return on investment channels for nurturing leads and build customer loyalty. Okay, अभी यहाँ पे भी see segment email list based on customer behavior, interest, on demographics to tailor message more precisely. Use automated drip campaign to nurture leads. Okay, product cases and offers. Okay, so अभी anyone who is aware about email marketing, how does it work? No one? No. Okay, so जैसे कि emails even we get on promotional mails on our Gmail ID. Okay, तो वहां पे भी अभी see, first of all it is banned. You cannot until and unless consent of the user, you cannot send him any promotional mails. Okay, तो पता जब है भी yes. मैम, पता है मैंने मेलसिंग पे किया था, ईमेल कैंपेन ओके, किया था. ओके, नहीं अभी कुछ लोग भी है सेशन में जिनको पता नहीं है. सो before we used to, there are people who sell data in the market, okay, where they charge like 5,000 for 10,000 email IDs or 2,000 for 10,000 email IDs. So better don't go for it. First of all, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके यूजर्स कौन है, आपके ऑडियंस कौन है. उसके बेस पे आपको पूरा सेगमेंट करना पड़ेगा, लाइक दोज पास परचेज कितने लोगों ने लिया है, और या फिर दोज हु आर एग्जिस्टिंग कस्टमर, टू सेंड देम व्हाट काइंड ऑफ ईमेल्स. सो ये सब चीजें बहुत जरूरी है. तो अगेन ईमेल मार्केटिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजिटल मार्केटिंग. बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे ऑडियंस को किस टाइप का मुझे मेल भेजना है. बिकॉज अगर आप उनको बार बार भी मेल भेजोगे, लाइक इफ यू आर सेंडिंग 3 मेल्स इन अ वीक, सो डेफिनेटली देर आर चांसेस ऑफ अनसब्सक्राइब. ओके, सो वहां पे भी आपको चेक करना पड़ेगा. यू नीड टू कीप ऑन ट्रैकिंग हाउ मेनी पीपल हैव ओपनड योर मेल, बाउंस हुआ है कोई मेल, या फिर किसी ने मतलब ओपन किया बट दे हैवंट फिल्ड द फॉर्म. सो यू नीड टू check each and everything in email marketing. Then influencer marketing, again, influencer marketing is nothing but collaborating with influencer boost reach, especially with niche or younger audience. अभी जैसे कि foodie
suppose you have a restaurant, okay, you want to promote it. अभी जैसे कि अगर आप ads चलाओगे, कितना ads चलाओगे, okay, like it will take a lot of time for you to come up to those followers, reach to those followers. So better आप है ना influencers को आप hire कर सकते हो, okay, those who have more than 10,000 followers, या फिर जिनके पास more than 50,000 followers है, 1 lakh followers है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स दे आर इनटू लाइक दे विजिट ऑल द रेस्टोरेंट, सम ऑफ देम दे ओनली ट्रैवल, ओके, किसी को दोज हु आर इनटू ट्रैवल इंडस्ट्री दे विल हायर दोज इन्फ्लुएंसर्स एंड दे आस्क देम कि प्रमोट आर एड ऑन योर चैनल और ऑन योर पेज। तो ताकि उससे क्या होता है कि वो बहुत फास्ट अपना प्रमोशन हो जाता है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे कि अगर सपोज यू ओन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग अगर आपका है, तो आप अभी जैसे कि आप प्रमोट करने जाओ तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, सो यू कैन गेट इन टच विथ एनी सिंगर है या फिर दोज हु आर इनटू म्यूजिक इंडस्ट्री, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हायर, आई मीन लाइक इफ यू प्रमोट, इफ यू आस्क नेहा कक्कर या फिर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर जो उसके चैनल पे या फिर उसके स्टोरी पे अगर आपके ब्रांड को प्रमोट करेगा तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा rather than running ads. So this is how where you can engage your audience, okay, and often charge less than larger influencers. So there are micro influencers also, they charge very less, but again you need to check what kind of charges they take. कुछ लोग कम भी लेते हैं और कुछ लोग डिपेंड करता है कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं, ओके, सो ओके उस पे भी आपको यू नीड टू ट्रैक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लाइक एंगेजमेंट रेट्स कितने आ रहे हैं, तो प्रीवियसली आपका कितना एंगेजमेंट था, अभी इन्फ्लुएंसर से आपका कितना प्रमोशन हुआ है, सो ये सब आपको ट्रैक करना जरूरी है। देन वीडियो मार्केटिंग, so video content especially on platform like YouTube and TikTok has high engagement and drives conversion effectively. Again see, कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, कंसिस्टेंसी इज द मेन रोल, ओके, कंटेंट इज द मेन रोल। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे और एवरी टाइम इफ यू ड्राइव विद डिफरेंट कंटेंट टू द यूजर, डेफिनेटली यू विल हैव अ हायर एंगेजमेंट, ओके, और कन्वर्जन के भी चांसेस ज्यादा है। अगर आप सेम वीडियो अगर महीने में 2 बार पुटअप करोगे तो नोबडी विल बी इंटरेस्टेड, तो चांसेस आपके सब्सक्राइबर्स तो होंगे ही नहीं, हो सकता है आपको अनफॉलो भी करे, ओके। Okay, so always try to create 30 seconds video, okay, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो और अगर आपने यूट्यूब चैनल ओपन किया तो शेयर सोशल मीडिया लिंक्स ऑल्सो, ओके, शेयर योर यूट्यूब चैनल लिंक सो दैट यू कैन ड्राइव ट्रैफिक फ्रॉम देयर टू हियर। तो स्टार्टिंग में आप 30 सेकेंड्स के वीडियोस बनाओ, मैक्सिमम 1 मिनट, वेर यू कैन एंगेज। अगर आप एक साथ 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो पुटअप करोगे वेर पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट योर कंटेंट एट ऑल, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जस्ट चेक, ठीक है। तो इनिशियली फॉलोअर्स बढ़ने तक आप 30 सेकेंड्स में एंगेज करो और आपको लग रहा है कि आपके ऑडियंस काफी इंटरैक्ट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर योर वीडियोस, ओके, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन योर कंटेंट, डेफिनेटली दे विल इंटरैक्ट, ओके, देन फिर आप 2 मिनट 3 मिनट के वीडियोस आप पुटअप कर सकते हो। सो दैट्स द रीजन इंस्टाग्राम रील जो शॉर्ट मिनट वीडियो है ना, उस पर ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म वीडियोस। So use YouTube SEO technique by optimizing, again title description यहाँ पे भी important है, and again monitor those who have commented on your videos, okay, if there are negative comment ignore it, handle it very patiently because it's a public account, okay, अगर आप कुछ भी negative put up करते हो तो it will might harm your your brand reputation, ठीक है। तो जितना हो सके आपको ये चीजें बहुत मेंटेन करनी जरूरी है, okay। Then comes up what are the challenges you will face in digital marketing। एक तो डेटा प्राइवेसी लॉज, जैसे मैंने बताया कि बिना कंसेंट के आप किसी को भी मेल नहीं भेज सकते, ओके, लाइक GDPR इन यूरोप एंड CCPA इन कैलिफोर्निया, ओके, वहां पे बिना कंसेंट के यू कैन नॉट सेंड इवन Amazon या मिंत्रा के मेल्स। अभी यहाँ पे इंडिया में तो इट इज हैपनिंग, ओके, बट अगेन लॉ भी पास हो गया है, तो इवन इफ यू वांट टू सेंड एनी मेल्स टू एनीवन, टेक देयर कंसेंट। तो अब वो कैसे आप कर सकते हो, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे कुछ भी, फॉर एग्जांपल यू वांट टू रन अ फ्री डेमो सेशन, ओके, दिस वीकेंड, ओके, यू हैव डिजाइन अ बैनर ऑन सोशल मीडिया और आपने पुटअप किया है, तो फ्री डेमो सेशन पुटअप किया, या फिर यू वांट टू गिव फ्री ई बुक, तो डेफिनेटली द यूजर विल बी
कमेंट में आपको मिलेगा इंटरेस्टेड. Okay, so how will you send them ebook? Definitely they need to fill up the form. So there they are providing you the details. So that means he is interested in those kind of product. So then you can send him email कि आपने ebook के लिए interest लिया था. So we have this ebook. Apart from this, we have some other courses also. We have some other information related to our other products. So if you are interested, you can get in touch. I mean, like you can subscribe where you will get these kind of mails. So वैसे आप अपना data generate कर सकते हो. ठीक है. बट वही है कि अगर ऐसे कुछ रूल्स आ जाते हैं, ऐसे कुछ लॉज पास होते हैं, तो देन यू माइट फेल डिफिकल्टीज. Are exposed to an overwhelming amount of content every day, okay, making it challenging for brands to capture and retain attention. Okay, quality, creativity and timing become critical. तो अगेन सी एग्जाम्पल, जैसे ब्लॉग पोस्ट और वीडियो मस्ट ऑफर यूनिक इनसाइट्स. अभी आप कुछ भी पुटअप करो, बट अगर वो वैल्यूएबल नहीं रहेगा, रेलेवेंट नहीं रहेगा, ओके, हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं रहेगा, तो यूजर विल वोंट बी इंटरेस्टेड टू एंगेज टू योर कंटेंट. ठीक है. आप कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेक अवेयर अबाउट लाइक द न्यू ईवी व्हीकल इन द मार्केट, ओके, सो पीपल आर अवेयर अबाउट ईवी व्हीकल, बट कुछ लोगों को ये नहीं पता कि कैसे किया जाता है. लाइक पेट्रोल तो हम स्टेशन पे जाते थे, हाउ टू चार्ज. तो यू नीड टू क्रिएट वीडियोस, ओके, यू नीड टू एजुकेट पीपल की बेनिफिट क्या है, डीजल पेट्रोल और ईवी में कितना डिफरेंस है, हाउ मच यू कैन सेव. ओके, अभी जैसे कि वो कुछ यूजर माइट से थिंक अभी आई स्टे इन फ्लैट, आई मीन इन अ बिल्डिंग, तो वहां पे कुछ उसका है चांसेस, विल द सोसाइटी विल अलाउ टू पुट अप द आउटलेट फॉर द चार्जिंग थिंग. तो ये चीज भी चांसेस बहुत है जहाँ पे आपको अवेयर करना पड़ेगा. तो अनटिल एंड अनलेस अगर आपका कंटेंट रिलेवेंट नहीं होगा, एंड इफ इट इज नॉट हाई क्वालिटी कंटेंट, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड. सिर्फ अगर आप वीडियो पुटअप कर रहे हो और एंगेजिंग होना बहुत जरूरी है. तो दीज आर ऑल challenges you might face. देन एड फैटिक एंड बैनर ब्लाइंडनेस, जैसे कि यहाँ पे बताया कि यूजर बुक और फेसबुक और इंस्टाग्राम में इग्नोर और स्क्रॉल पास्ट एड्स, दे लुक जेनरिक और रिपीटेटिव, रिजल्टिंग इन लो एंगेजमेंट रेट एंड हायर कॉस्ट फॉर द ब्रांड. अभी जैसे कि हम भी सोशल मीडिया पे व्हेन वी सिट, ओके, वी जस्ट स्क्रॉल इट. मतलब अगर हमें कुछ चीजें, मतलब फर्स्ट जो बोलते हैं ना कि अगर कुछ हेडलाइन आ गया या फिर कोई ब्रांड नेम, वी फाइंड इट समथिंग इंटरेस्टिंग, वी क्लिक ऑन इट, अदरवाइज वी जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग. सो द अगेन कि कभी कोई इमेजेस हमें ब्लर लगे या फिर कोई हेडलाइन हमें कैची नहीं लगी, मतलब आपने भले आपने 50% ऑफ लिखा होगा, बट इट इज इन द वेरी राइट साइड कॉर्नर पे, विच वॉज नॉट विजिबल फॉर मी. सो अगेन दीज आर द चांसेस वेयर एंगेजमेंट रेट के कम हो सके. ठीक है. और फिर अगेन वन मोर चांस, आई मीन लाइक एड ब्लॉकर्स. तो बार बार भी अगर पॉपअप हमें आती है, ओके, जैसे कि गूगल पे वो बताता है कि डिड यू फाइंड दिस एड गुड, और डू यू वांट टू ब्लॉक दिस एड. सो अगेन कि बार बार भी एड पॉपअप हो, तो नोबडी विल बी लाइकिंग इट. तो ये भी एक चांसेस है कि एड ब्लॉक भी हो जाए, फिर लोगों को पता ना चले. तो देर आर क्वाइट मेनी चैलेंजेस. बट अगेन ऐसे नहीं है कि चैलेंजेस है तो हमें उसको इग्नोर करना है. तो वी आर फोकस इज जस्ट टू एंगेज द यूजर विथ वॉट एवर वी हैव. तो जितना अवेयरनेस आप क्रिएट करोगे, जितना आप एंगेजमेंट बढ़ाओगे आपके यूजर्स के साथ, तो दैट इज व्हाट. तो you have to take efforts, without which it is very difficult. So efforts के साथ consistency is the main thing. बिना consistency it is very difficult for you to engage with the audience. तो जैसे कि हम लोग इस पे भी देखते हैं, अगर यूट्यूब पे भी देखते हैं, तो देर आर मेनी पीपल हु कमेंट नेगेटिव. सोशल मीडिया पे भी वी हियर सो मेनी पीपल टॉकिंग नेगेटिव अबाउट प्रोडक्ट. जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि आई हैव परचेज दिस प्रोडक्ट, आई हैव पेड द अमाउंट, बट आई हैवंट रिसीव द प्रोडक्ट. सो यू नीड टू हैंडल इट वेरी पेशेंसली. जैसे कि आप अगर बड़े ब्रांड्स का भी अगर पेज आप चेक करते हो, ओके, गो एंड चेक. आई मीन लाइक दे विल नेवर बी हार्श टू द यूजर्स हु टॉक नेगेटिव. दे हैंडल इट वेरी पोलाइटली और चीजें सेटल भी हो जाती है. बट ऐसे नहीं है कि आपने आज पोस्ट किया और आप सोचोगे कि नहीं, मैं 2 दिन के बाद चेक करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम ट्रैवलिंग. यू कैन नॉट डू इट. यू हैव टू मॉनिटर इट एवरी एटलीस्ट, मतलब मॉर्निंग में पोस्ट किया तो एवरी एटलीस्ट इवनिंग, बाय इवनिंग यू नीड टू रिप्लाई टू योर पोस्ट, टू द कमेंट. यू कैन नॉट टेक इट मोर डिले, यू कैन नॉट डिले इट मोर. तो बहुत सारे हमारे साथ एक्सपीरियंस होते हैं. इवन वी पुट अप इन, मतलब कभी पूछते हैं कि वेर इज द लोकेशन, आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, या फिर तो
एक वीक भी पास हो जाता है, देर इज नो रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट, मतलब कमेंट पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो दैट शुडंट बी देयर। ठीक है, सो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों है। अभी बोलते हैं ना कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है, बट अगेन हाउ टू टेक इट पॉजिटिवली, इट्स इन आवर हैंड्स। और इतना मार्केट में अभी तो लाइक इन डिजिटल मार्केटिंग यू हैव सो मेनी टूल्स, इवन इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश, अगर आपको नहीं है तो आप चैट जीपीटी से लो, बट अगेन सी इफ यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट यू कैन नॉट टेक द एंटायर कंटेंट फ्रॉम चैट जीपीटी, गूगल विल नॉट एक्सेप्ट। सो ट्राई टू क्रिएट यूनिक कंटेंट। आप सोशल मीडिया के लिए आप कंटेंट ले सकते हो, सोशल मीडिया के लिए आप यहाँ से चैट जीपीटी से ले सकते हो, बट avoid doing it for the Google. Okay. So anyone, any questions? No, ma'am. No, ma'am. Sure. Sure, ma'am. Was I too fast? Was the session too fast? No, ma'am. Ma'am, I have one question. Yes, yes, ask, please. My question is about what is the strategy? In many interviews, they ask do you have any strategy to if we have launched a new brand and we need to aware that brand that what are your new strategy that we can show the awareness and what our service or our product actually do, how can we connect with our audience? So in strategy, what are the things I can include See, strategies depends upon the product. अभी जैसे कि for example, if you want to target students for digital marketing course, okay, so you need to check कि आपको किसे टारगेट करना है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू टारगेट स्टूडेंट्स लाइक 10th पास, ओके, अभी जैसे कि यू नीड टू चेक व्हाट इज द ट्रेंड गोइंग ऑन। अभी फॉर एग्जांपल नाउ इफ यू प्रमोट अ एड, ओके, देयर आर, अभी जैसे कि आप मार्च में अगर आप प्रमोट कर रहे हो या अप्रैल में फेब में प्रमोट कर रहे हो, देयर आर एग्जाम्स गोइंग ऑन। सो अगर आपके ऑडियंस स्टूडेंट्स है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रीच टू द राइट ऑडियंस, ओके। तो according to that you need to plan कि हाँ professionals also can be eligible for this course, so according to that you need to plan your strategies कि कहाँ कब मुझे promote करना है। but again organic, जितना हो सके ऑर्गेनिक अगर आप एक्टिव रहोगे, वो ब्रांड रिकॉल भी बहुत फर्क पड़ता है। पीपल विल रिकॉल योर ब्रांड लाइक दो जैसे कि फॉर एग्जांपल देर आर सीनियर सिटीजन हु आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, दे गो थ्रू ऑल द एड्स इवन दो द प्रोडक्ट इज नॉट यूजफुल फॉर देम, बट कभी किसी ने अगर पूछा कि अरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मुझे करना है, तो इमीडिएटली उनको स्ट्राइक होगा कि नहीं ये मैंने एड देखा था इसके बारे में, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट वेर you can check it out. I mean, like I'm getting so many ads every now and then. ठीक है, तो मेन थिंग इज सी यू नीड टू प्लान फॉर द एंटायर मंथ। अभी आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपके प्रोडक्ट के ऑडियंस कौन से है, आपको कैसे उनको पिच करना है। सी स्टार्टिंग यू कैन नॉट सेल एनी यूजर, इफ यू ट्राई टू सेल देम दे विल बी नॉट इंटरेस्टेड। प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अवेयर, वही मैंने बताया कि कंटेंट प्लान करना पड़ेगा। अगर आप एवरी डे डिफरेंट कंटेंट या फिर वीक में अगर 3 भी पोस्ट करते हो, सपोज यू मस्ट हैव सीन सो मेनी सीरीज कमिंग अप, या फिर यू मतलब सी ना हाउ दे प्रमोट, ओके, मतलब कितना डिजायर क्रिएट करते हैं फॉर द यूजर जस्ट टू एंगेज विद द प्रोडक्ट, ओके। तो प्रमोशंस भी उन लोग इस तरह से करते हैं कि जितना कोशिश करें कि दे गेट एंगेज विद द प्रोडक्ट। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू लाइक जितना हो सके आप मॉनिटर करो आपके चैनल को, एंड ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने पोस्टिंग कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कितने एंगेजमेंट हो रहा है। यू आर डूइंग योर पार्ट, बट व्हाई देयर इज नो एंगेजमेंट हैपनिंग, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू प्लान योर स्ट्रेटजीज कि मे बी नाउ द स्टूडेंट्स आर बिजी, दे आर बिजी विद द एग्जाम्स, दैट्स द रीजन आई हैव नॉट गॉट एनी लीड्स, ओके। सो सपोज तो जो भी प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट आपको उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजीज प्लान करने पड़ेंगे। mainly the product was the service was a SEO agency.
अच्छा, It was the okay. SEO agency, and they have asked me about to just create post about their about a brand, and that is also a SEO kind of agency. So mainly मुझे ना समझ में नहीं आया था कि स्ट्रैटेजी में अगर कहा जाए तो क्या क्या चीज वहां पे इंक्लूड करना था, इसलिए मेरा एसईओ इंटरव्यू का हाँ मतलब वो हाथ से निकल गया वो चांस नहीं मुझे। नहीं, एसईओ का एजेंसी था तो जैसे कि आप उनको बता सकते थे कि गो आई मीन वर्क ऑन दी रेलेवेंट टूल्स, ओके, फॉलो सम, जैसे कि नील पटेल है, डिजिटल प्रतीक है, ओके, फॉलो दीज डिजिटल मार्केटर्स वेयर यू विल गेट दी रीसेंट अपडेट्स, ओके। और ये उन लोगों का दो चीज है, एक हाँ, वो लोग ये सर्विस प्रोवाइड करता है, दूसरा ये लोग सिखाते हैं, मतलब इन लोगों का एक अलग से इंस्टीट्यूट वगैरह है। नहीं, दैट इज तो फाइन, दैट इज हाँ फाइन फॉर एसईओसी। जैसे हमने बताया कि सेमरश है, आरएफ है, वैसे बहुत सारे टूल्स है, ओके, जहां पे आपको कीवर्ड्स है जैसे कि टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, बैकलिंक्स, टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये सब पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इट्स ओके, आई मीन लाइक यू हैव वर्कड एज अ इंटर्न, राइट? yes. I'm still working as an intern, but I'm just looking forward to join some agencies as soon as possible. So I'm just looking for a good job that give me the flexibility to work. ओके ओके, Ma'am, yes, before Subrajit, yes. I'm sorry to interrupt you both. No, no, it's okay. Yes, I just wanted to reframe the thing. But suppose, as an example, I just wanted to give you an example. Suppose you say any kinds of knowledge agency, knowledge brand, like Byju's and Oda classes, something like. Suppose उन्होंने मुझको बोला है just create a content about our channel in my according go to the Instagram page and YouTube page and create a content and create a post and just and select the post type feed, carousel, video, and etc. And also type the call to action button. So, ma'am, before I'm going to the call to action button, before I go into the type of the video, type of the post, I just want to create the strategy. तो मैम कौन कौन से पैरामीटर्स उसको समझने पड़ेंगे, तो ये इसमें कुछ टूल्स वगैरह कुछ है? इज देयर एनी काइंड्स ऑफ टूल्स बाय व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी आई कैन मेक? See, I mean, अभी strategy mainly depend upon the content writing. So these yes. things are quite hard to that I mean for promoting their things and other strategies. So that's why I'm really wanted to know. Can you Okay. please share any kind of example सी right now? सुब्रजीत, अभी जैसे कि स्ट्रेटेजीज, अभी वो लोग उनके ऑडियंस कहाँ पे एक्टिव है, फॉर एग्जांपल जैसे इफ दे वांट टू टारगेट द प्रोफेशनल्स, ओके, तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यू कैन नॉट प्रमोट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। आपका प्रोडक्ट कहाँ पे, आपके ऑडियंस अगर वो बोलते हैं कि इफ दे आर इनटू कंसल्टेंसी, इफ दे आस्क यू लाइक प्रमोट ऑन इंस्टा ऑल्सो, प्रमोट ऑन सोशल मीडिया एंड लिंक्डइन, सो वी नो, सी क्लाइंट तो कुछ भी बोलेगा, तो वी नीड टू फाइंड वेयर द ऑडियंस इज, रिसर्च हमें करना पड़ेगा, ठीक है। They are mainly targeted. I'm just talking about Byju's. They are mainly targeted the students only. या तो ओके, मैम मैं स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊं? सपोज उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में बोला कि हाँ, स्ट्रेटेजी बनाओ, मेन टारगेट है एसटीपी सेगमेंट टारगेटिंग, इवैल्यूएटिंग एंड पोजीशनिंग मेनली आर स्टूडेंट्स. The student types are 5 to 10, 10 plus student or 5 to 12 plus students. तो ये ओके, है, ये पैरामीटर्स दे दिया मुझे. मैम यस। स्ट्रेटेजी बनाओ कैसे? कुछ अगर आपके पास अभी एग्जांपल हो तो. तो स्ट्रैटेजी से आपको वही है कि आपके एक तो ऑडियंस आपके डिफाइंड है, आपके स्टूडेंट्स है, ओके, और आपको पहले तो आपको प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे टारगेट करना है। सी इट इज नॉट नेसेसरी कि स्टूडेंट्स को टारगेट करना है तो फेसबुक एंड इंस्टा, यू कैन टारगेट लिंक्डइन ऑल्सो वेयर देर आर प्रोफेशनल्स, जो बच्चों के पेरेंट्स भी है जो लिंक्डइन पे एक्टिव है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दैट, और जैसे कि मैंने बताया कि आपको कंटेंट वैसे प्लान करना पड़ेगा, तो बायजूस सी सबको पता है कि प्रोडक्ट बेच रहा है, बट अवेयर करना पड़ेगा उसके बेनिफिट्स क्या है। कम अप विद द टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, रेटिंग्स ऑफ दोज हु हैव यूज्ड दोस प्रोडक्ट्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू कम अप विद द वीडियोस, या फिर कभी डेमो सेशंस आपने अरेंज कर लिया वीकेंड पे, कोई शॉर्ट वीडियो, या फिर जैसे कि 29 रुपीज में 1 आवर का क्लास आपने ले लिया, वेयर दे विल अंडरस्टैंड कि किस टाइप का ट्रेनिंग होता है, ओके। सो ये सब स्ट्रैटेजीज आपको प्लान करने पड़ेंगे।
जैसे कि आप देखो सुप्रजीत, मेन कैसा है कि कोई क्लाइंट को काम करना या फिर हमें करना एक ही है, बिकॉज ही इज हायरिंग फॉर हिज बिजनेस, बट अगेन वी हैव टू टेक एफर्ट्स टू मतलब उसके बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें ही एफर्ट्स लेना है। तो ऐसे कंसिडर करना है कि सपोज इफ आई एम अ कस्टमर, इफ आई वांट टू बाय दी बायजूस, तो मैं क्या देखूंगा, मतलब वो प्रोडक्ट में मुझे क्या चाहिए जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स, अभी बायजूस के अलावा दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी है आई थिंक मार्केट में। यस यस, कोडा हाँ, क्लासेस देर, है, लर्निंग या जंप है, तो या सो व्हाट यू नीड टू फाइंड कि व्हाट इज द यूएसपी इन योर प्रोडक्ट कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अगर आपको ये बाय करना है, आपके पास ये इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आपके सामने हैं, तो आप बायजूस ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, ये सब क्यों नहीं कर रहे हो? तो देखो, एक तो बहुत सारे ऑडियंस के चॉइसेस अलग है। सम ऑफ देम दे गो विद द फ्लेक्सिबिलिटी, some of them they go with the price, some of them they go with the comfortable, मतलब अगर पेरेंट्स वर्किंग है तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। तो आप क्या दे रहे हो उनको कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर? सो दैट इज व्हाट यू नीड टू प्लान। और जैसे मैंने बताया कि आप अट्रैक्ट करने के लिए आप जैसे कि शॉर्ट लाइक 29 रुपीज में आप 1 घंटे का डेमो सेशन दे दो, या फिर फ्री डेमो सेशन दे दो, या फ्री गिव अवेज दे दो, या जो भी है, जहाँ पे उनको पता चले कि द वे यू वर्क और द वे ऑफ टीचिंग इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू प्लान। ऐसे अगर इमीडिएट आप फर्स्ट ही इसमें अगर आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो नोबडी विल बी इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट। So as per that, you need to plan. First of all, you need to check with your competitors, check your USPs क्या है, और उसके बेस पे आपको कंटेंट जनरेट करना है। और ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एड चला के ही प्रमोट करोगे, नो, यू हैव टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आप देखो, जैसे मैंने बताया, कंटेंट कैलेंडर प्लान करना है एंटायर वीक का, भले 2 पोस्ट क्यों ना क्रिएट करो, बट इट हैज टू बी वेरी डिफरेंट एंड एंगेजिंग। कोई भी आप रील बनाओ, या फिर आप वीडियो बनाओ, या फिर आप पोल रेज करो, इट हैज टू बी एंगेजिंग। अगर कंटेंट भी ही एंगेज नहीं ले रहा है तो देर इज समथिंग नेगेटिव। और कभी देखो, आप पोस्ट करोगे तो अगर एंगेजमेंट नहीं हो रहा है तो यूजर कभी नेगेटिव कमेंट से भी आ सकता है, कभी किसी का गलत एक्सपीरियंस हुआ होगा प्रोडक्ट बेच के, दे मस्ट हैव नॉट रिसीव द सर्विसेज व्हाट दे यूज्ड टू गेट। ठीक है, सो अगेन वही है कि मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सुब्रजीत। सिर्फ कंटेंट तो है ही, कंटेंट से यूजर अट्रैक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय करेगा, बट अगर आप उनको प्रॉपर डिलीवरी नहीं दोगे, अगर जो आप सर्विस दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपके चांसेस है कि बिजनेस पॉसिबल नहीं। तो वही है कि एक चीज नहीं काम करती है, आपको हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा, एंड दैट हैज टू गो ओके। स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप कंटेंट का क्या हो रहा है? पहला स्टेप पहले तो आपको आपके ऑडियंस के साथ एंगेज करना पड़ेगा, ऑर्गेनिकली पोस्ट क्रिएट करो। पहले तो मैं बोल रही हूँ ना कि कंटेंट कैलेंडर प्लान करो पूरे मंथ का। ओके, भले वीक में 3 पोस्ट करो या 2 करो, या जो भी है, आपको डिफरेंट चाहिए। पूरे एंटायर मंथ में द कंटेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो उसके बेस पे आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से कंटेंट पे ज्यादा एंगेजमेंट मुझे मिल रहा है, तो उसी टाइप का कंटेंट आप हर बार क्रिएट कर सकोगे। समझ ओके, गए? मैं समझ गया। ओके, ठीक है। सो एनीवन, एनी क्वेश्चंस? यस मैम। यस अमित। मैम, जैसा कि आपने बताया कि ये जैसे लिंक्डइन पे हम स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन लिंक्डइन पे मैंने ये देखा है कि आदमी के फॉलोअर्स चाहे जितने भी हों, ठीक है, उनके मतलब कि ऐसा होता है जैसे वो लोग पसंद नहीं करते कुछ भी चीज है। अब हाँ। मुझे तो जैसे हम भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं, तो हमारे पास जितने भी कस्टमर या स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट को फोकस करते हैं, बट हाँ। सारे स्टूडेंट्स मुझे टेलीग्राम से मिले हैं। टेलीग्राम पे जो मैं पोस्ट डालता हूँ तो उसमें मेरे को स्टूडेंट मिल जाते हैं, ठीक है, अब हम हायर कर लेते हैं। सेम हाँ। सेम थोड़ा ऐसा ही काम है हमारा भी, बाकी मैं सीख भी रहा हूँ यहाँ पे। तो ओके। हाँ, हमें उसमें इस पे लिंक्डइन में मैंने देखा है, एक तो वहाँ पे सारे बंदे ही वो हैं क्या, एक्सपर्ट हैं। ओके। लिंक्डइन, हाँ, लिंक्डइन पे जितने भी बंदे एक्टिव हैं, आपने स्टूडेंट तो कोई है ही नहीं, सारे बंदे एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज का मतलब बायो में नहीं उनके है, एक्सपर्ट ही। नहीं अमित जी है। ऐसे नहीं है कि स्टूडेंट्स नहीं है, बट हाँ सी। मैम, होंगे, हाँ होंगे मैम, लेकिन उनके बायो में सबके ही एक्सपर्ट ही है। अच्छा, ओके। हाँ, और तो मुझे जितने भी हमने जो भी हमने हायर करे वो सारे हमने टेलीग्राम से हायर करे हैं। और इसके हाँ। बाद दूसरी चीज ये समझ में नहीं आती, आपने कहा कि लिंक्डइन फेमस है केवल वर्क के लिए, ठीक है, यस, और प्रोफेशनल। बाकी, हाँ, बाकी पोस्ट के लिए तो इंस्टाग्राम चलता है, जो भी है ना। हाँ हाँ आपने हाँ। कहा लिंक्डइन फेमस है, लेकिन आप चेक करोगे जिसके ये मान लो 50,000 भी सब्सक्राइबर फॉलोअर्स जिसे कहते हैं,
ये हाँ जो भी है, जिसके 50,000 भी है, 1 लाख भी हैं। लेकिन हाँ आपने अगर कोई काम की चीज पोस्ट करी है तो उसमें जो उनके लाइक्स वगैरह आते हैं वो काफी कम रहते हैं। वहीं पर अगर आप फोटो पोस्ट कर दोगे तो उसके काफी ज्यादा आते हैं। इसका मतलब कि आदमी केवल फोटो में इंटरेस्टेड है। नहीं, ऐसा नहीं है अमित जी। अभी देखो, मैं आपको इजी वे बताऊं, आप बेटर है कि अगर आप हायरिंग कर रहे हो तो यू बेटर गो विद अ कंसल्टेंसी। ओके। जी मैम। हाँ, लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म अगर आप यूज कर रहे हो, ओके, अगर आपका ब्रांड नेम बड़ा नहीं नहीं नहीं, है। लिंक्डइन, हाँ लिंक्डइन में मैं रहता हूँ, लेकिन मुझे जो भी मेरे काम की चीजें हैं वो मुझे टेलीग्राम से मिलती हैं। जो भी हाँ, हायरिंग तो करता हूँ वो टेलीग्राम से वही बच्चे है। आते हैं। हाँ, बट अमित जी वही है कि आपको देखना है। ऐसी अभी अगर आप देखोगे कि अगर मैं देखूं कि फेसबुक पे अगर कोई प्रोडक्ट मुझे बेचना है, तो मुझे पता है कि हम्म। मेरे ऑडियंस अभी ऑर्गेनिकली बहुत हाँ। एंगेज हो रहे हैं। ठीक है, तो लिंक्डइन मैं पे मैंने रोज फीड में। हाँ, इसी हायरिंग के लिए भी मैंने कई पोस्ट करे हैं लिंक्डइन हाँ। पे। लेकिन लिंक्डइन पे एक तो मेरी कोई सेल नहीं आई और कोई मेरा बच्चा नहीं आया, कोई मेरे पास आए, वो अच्छा। सारे टेलीग्राम से ही आए। और हालांकि लिंक्डइन फेमस है ऐसी काम के लिए, मतलब कि हायरिंग वगैरह के लिए फेमस है। ओके ओके, नहीं बट अभी डिपेंड करता है। देखो आपके ऑडियंस अभी वही है ना कि डिजिटल मार्केटिंग में इतने सारे प्लेटफॉर्म है, और हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि मुझे यहाँ से ही लीड्स आ रही है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही। सो हाँ जी मैम, डिपेंड ये ठीक करता है। लेकिन मैम किसी पोस्ट पे जैसे आपने कहा एंगेज करेंगे, आदमी रिएक्ट कर रहा है तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ चलो ये हमें, मतलब कि है। इस यस पोस्ट को लाइक करे, इसका मतलब ये बंदा इंटरेस्टेड है इसमें। तो यस। लिंक्डइन पे जो भी अगर कोई काम की पोस्ट आप करोगे तो वो हाँ उस पर इंप्रेशन तो आएंगे, बट उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा आदमी। हाँ। और और वहां पे कैसा है, हाँ, देखो अमित जी। उसी की जगह अगर आप कोई फोटो पोस्ट कर देते हो तो उस पर दुनिया भर के लाइक आएंगे बहुत ज्यादा। अभी उसका आंसर तो मैं, क्योंकि सी एक तो प्रोफेशनल That's true, प्लेटफॉर्म that's है true. I उसमें also ना suffered this type of problem at the कुछ very beginning. लोग, हाँ नहीं, कुछ लोग बोलने के लिए भी सोचते हैं बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली प्रोफेशनल। ओके, आई मीन लाइक इवन अगर वहां पे आप नेगेटिव कमेंट भी अगर आप दो तो बहुत विजिबल इजी हो जाता है। जैसे कि नहीं नहीं, फेसबुक तो पे मैम बहुत हाँ बिग लिंक्डइन पे क्राउड है। फिलहाल नेगेटिव कमेंट तो रहते ही नहीं है, कमेंट नहीं रहता लिंक्डइन पे। बस ये है कि मैंने बस ये बात बताया कि फोटो पे ही लाइक ज्यादा आ जाते हैं, किसी काम की चीज पे नहीं आते। हालांकि बट फोटो वगैरह फोटो, पोस्ट वगैरह के लिए तो इंस्टाग्राम दे रखा है। हाँ वो तो है। नहीं बट मैंने तो अभी तक कोई भी फोटो का तो मैंने देखा नहीं है, बट मैंने लिंक्डइन पे तो मैंने। हाँ मैंने एक नहीं बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह चेक करे हैं मैंने, उनके मैंने हाँ हाँ जो हाँ उन्होंने किसी ने भी, जो भी उसके हाँ, ट्रेनर वगैरह हैं, उन्होंने अपनी हाँ। फोटो डाली है और प्लस एक दूसरी पोस्ट डाली है। अगर उसी पोस्ट में ही फोटो है तो उसकी बात अलग है, ठीक है, उसमें तो अच्छा मेरे को दिखा है इंगेज। लेकिन अगर उनकी अलग उसी सेम बंदे ने अगर अलग पोस्ट डाली है और अलग फोटो डालते हैं तो दोनों को आप मैचिंग करना लाइक्स वगैरह से। ओके ओके। पता नहीं, अभी हो सकता है आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। नहीं नहीं, एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है, एक्सपीरियंस कोई नहीं, मैं तो वैसे नॉर्मली यूज बट कर इट्स अ लेता वेरी हूँ। गुड प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो सी प्रोफेशनल के हिसाब से आई वुड ऑलवेज सजेस्ट रादर देन बीइंग एक्टिव ऑन अदर सोशल मीडिया। अगर आपको सच में करियर ग्रोथ चाहिए तो ऑलवेज मतलब है ना। इससे ज्यादा तो कि मैम जैसे इंस्टा पे पता चल जाता है कि हाँ कौन बंदा क्या काम कर रहा है, कौन स्टूडेंट है, कौन बिना भेड़ बकरी चरा रहे, कौन क्या कर रहा है, ये पता चल जाता है इंस्टाग्राम पे। लेकिन उस पे लिंक्डइन पे सारे एक्सपर्ट हैं। ओके ओके हालांकि इस 12 में मैं भी हायर हुआ हूँ लिंक्डइन से ही। ओके ओके। नो वरीज नो वरीज। ये लिंक्डइन पे तो एक्सपर्ट ही होंगे ना सब, मतलब जॉब के लिए वहां पे आते हैं तो फिर ऑब्वियसली लिंक्डइन पे नहीं तो है एक्सपर्ट स्टूडेंट्स, बट अभी वो लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा लोगों को, मतलब प्रोफेशनल्स को हमारा प्रोफाइल ज्यादा अट्रैक्टिव लगे तो दे डेफिनेटली दे ऐड देयर प्रोफाइल, मतलब जो भी उनके क्वालिफिकेशंस थोड़ा अपग्रेड ही करते हैं ताकि ज्यादा रीच हो, और कुछ नहीं। वही मैम। और इंस्टा पे लोग फन के लिए आते हैं हाँ, अभी इसीलिए। सी यू कैनॉट कंपेयर लिंक्डइन विद सोशल मीडिया। मतलब सी वही मैं बोलती हूँ ना कि कमेंट करने के लिए भी 10 बार सोचता है लिंक्डइन पे, बिकॉज वहां पे पूरा प्रोफेशनल ऑडियंस है। तो वहां पे आप कुछ भी बोलो तो इट इज क्वाइट। अभी फेसबुक पे आप कुछ भी बोल दो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, इंस्टा पे कुछ भी बोलो आप उतना नहीं फर्क पड़ेगा जितना ये पूरा प्रोफेशनल पे पूरा फर्क पड़ जाता है। चलो एनीवेज, सो इट वाज नाइस इंटरैक्टिव सेशन विथ यू ऑल। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? Ma'am, when the main session and main classes would be started, because I told that I have an exam and because I mean English student and I am in third semester. I think my third semester will be in the December 23, so I will be joining the 26th.
So the thing is, when the mail session will shall you book my slot in a different way, or shall I have to start from the next day? सुब्रजीत आपकी वॉइस थोड़ी मुझे बहुत कम आ रही है। आई डोंट नो, आई मीन लाइक आज नेटवर्क का कुछ है या आई मीन। No, ma'am. Shall I repeat? Am I audible now? हाँ, थोड़ा लाउडली। एक हाँ 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 यस मैम, मैम। इस बात को मैं भी कहने वाला था, इस आवाज इनकी थोड़ी स्लो आ रही है। है ना, स्लो आ रही है ना। यस मैम, पहले भी मैं कहने वाला था इस बात को। हाँ हाँ, मैम ओके। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए मैंने क्लासेस बुक किए हैं। द थिंग इज आई एम MBA स्टूडेंट and my third semester would be over in the 23 December. So I can join in the 26th. So shall you people are going to book my slot in a different way, and or either I have to join initiate as soon as possible. I mean, this type because the या यू recruiters tell me that विल सी द मेन कंसर्न पर्सन विल गेट इन टच विथ यू अबाउट दिस। okay ma'am, ठीक है, ओके okay, thank you. ओके या। सो एनीवन एनी क्वेश्चंस? शुड वी एंड अप द सेशन? एक Ma'am, one last question. Actually, it's not हाँ question, it's a request. Like हाँ you हाँ। said that email marketing is very vital. So I want to just clear my doubt on how to just collect leads to send emails to them. See, जैसे मैंने So बताया there कि must सोशल मीडिया पे आप देखो ना, आप कभी फॉर एग्जांपल लेट मी सी, एक मिनट, इफ आई फाइंड एनी पोस्ट राइट नाउ, एक सेकेंड, जस्ट चेक। आप सोशल मीडिया पे कभी भी एक स्पॉन्सर एड्स अगर आप देखते हो, ओके, व्हेन यू क्लिक ऑन द CTA बटन साइन अप नाउ या डाउनलोड नाउ, तो उसके सामने जब आप उसको क्लिक करते हो तो देर इज अ फॉर्म पॉपिंग अप वेयर यू हैव टू फिल द डिटेल्स अबाउट योर नेम, ईमेल आईडी या जो भी है। एक मैम सेकेंड। फॉर्म या मतलब लैंडिंग पेज वगैरह हाँ द सेम थिंग ना? हाँ, वहां पे डिटेल्स आ जाएंगे, तो दैट इज व्हाट द लीड्स यू आर गेटिंग, दैट इज व्हाट वेयर यू आर गेटिंग द डेटा। एक सेकेंड ना, मैं अभी आपको बताती हूँ। वेट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। लकीली आई मीन लाइक मिल गया। वेट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। ओके, सो जैसे कि ये फेसबुक अकाउंट है, ओके, व्हेन यू लॉग इन, ये जैसे कि IIMI सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अरे हाँ, चलो ये सी दिस IIM कोजी कोडे डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऐड आई है। ओके, अभी जैसे कि आई वांट टू अप्लाई, when I click on the apply button, you get a form where you have to fill. See, this is where the form pop-ups, जिसे लैंडिंग पेज बोलते हैं या फिर लीड जनरेशन बोलते हैं, where you have to fill the first name, email ID, job title, city, ये सब। तो इसके वजह से लाइक यू नो, सपोज आप फ्री ई बुक दे रहे हो तो डाउनलोड ब्रोशर, तो ये डिटेल्स उसके पास जा रहे हैं और आपको ब्रोशर डाउनलोड हो रहा है। अगेन ही इज गेटिंग द डेटा सो दैट ही कैन सेंड यू मेल, ही कैन सेंड यू व्हाट्सएप, ओके, विद द नंबर। ठीक है, दो चीज साथ में हो जा रही है। अंडरस्टूड? ओके मैम, देन मेरा जो खुद का जो सर्विस है डिजिटल मार्केटिंग में, जो भी सर्विस मैं प्रोवाइड करती हूँ, सो फॉर दैट हाँ आई नीड वो डोमेन एंड होस्टिंग, और जिसके थ्रू मैं शायद वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा या लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, और उसके थ्रू मुझे कस्टमर मतलब यस, ये सर्विस के लिए फॉर्म फिलअप करेगा या लीड्स जमा होंगे, तो उसके करेक्ट। थ्रू मैं अब मेरे सर्विस के बारे में जो भी है, जो हाँ चार्ट है, जो भी मैं बनाया या जो भी वर्क सैंपल है, उसको मैं बना के वो भेज सकती हूँ, राइट?
Yes, correct, Okay, correct. so this is the process step by step. Yes, yes. I mean, Okay. like, see, this was which मैंने जो भी एग्जांपल दिया that was sponsored, मतलब जो एड रन कर रहे थे. But organically आप ऐसे डेटा जनरेट कर सकते हो सोशल मीडिया पे. If anyone who is interested for your product or anything, definitely they will share. ठीक है. तो आप जैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हो तो यू जस्ट गो फॉर ईच एंड एवरी पोस्ट. आप चेक करो कि किस टाइप के पोस्ट है. ओके, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि मतलब कहाँ पे हाउ दे गेट द डिटेल्स. सो फॉर दैट यू नीड टू बी एक्टिव. ऐसे नहीं है कि लाइक यू आर एक्टिव टुडे एंड यू आर स्किपिंग फॉर द एंटायर वीक देन अगेन एक्टिव. सो दैट विल नॉट वर्क. यू नीड टू मॉनिटर योर पेज, योर अकाउंट every day, you can say. Okay. Okay, Thank you. you're welcome. Okay, Arzu. Yes, Nisreen. So students, please drop your feedback in the chat box. Like, how was the master class? Like, do you like it? Yes, welcome, Nainesh. Please, everyone drop your feedback in the chat box. Also, one thing, if anyone is interested in digital marketing training and internship with us, you can just contact me over WhatsApp. Like I have message in the group as well. So you can send your details or like personally to me, and our team will contact with you. And Ma'am, can you please send your postal number over the chat box? sorry, your voice is not clear. I'm No, not. no, I just want your number over the chat box by which I can contact through the WhatsApp only. Can you please write in the chat box? I'm not able to understand what actually you are saying. नहीं मैम am I audible now? You are audible, but your voice is not clear. I think there is I some. mean no मैं बोल रहा हूँ कि मैम आप अपना नंबर पोस्ट कर दीजिए चैट बॉक्स पे बाय विच मैं रीच कर पाऊँ आप तक फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन एंड ऑन. Yes, Arzu. sure, Yeah. sure. Arzu, can I leave? Yes, Nisreen, you can. I'm just waiting for the students for their Yeah, feedback. actually, I have a session scheduled. Okay, sure, So sure. just- Thank you. So thank you, Nisreen, everyone. for this wonderful session. Yeah, thank you you. for taking this session. Yeah. Yeah. Bye, everyone. Take care. Students, please drop your feedback. Okay. Thank you, students, for joining today's masterclass. We hope to bring such masterclass in the future as well. Thank you, everyone. And if you are interested in digital marketing training and internship, you can contact the number which we have sent in the group from the names Truely Technology. So you can send your name and mobile number. So our team will contact you.